हेलो स्टूडेंट, आई एम सौरभ सैनी एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। सो हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलेंगे, देन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 1.1 सेट्स। इंट्रोडक्शन: इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। और जनरली सेकंड डेफिनेशन सेट की हम ये भी देते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. Those objects are defined in the same categories such as cricket team, pack of card, school children, etc. There are the following collection of objects which comes in mathematics, such as the rivers of India, the vowels in the English alphabet A, E, I, O, U. When I say the vowels in English alphabet, so generally vowels are A, E, I, O, U. So it is a proper well defined collection of object. We know already that A, E, I, O, U is the vowels, so it is the well defined collection of object. So जो well defined collection of object होगा उसी को हम set बोलेंगे. Such as prime number. Prime number की definition आप लोगों को पता ही होगा. Those number which are divisible by 1 or itself are prime number. So 3, 5, 7, 11, 13. These number are divisible by only 1 or itself. After 13, next prime number will be 17, then 19. Those are divisible by 1 or itself. नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो और विच आर इन फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑल आर द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 टू सो ऑन. जनरली सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, capital A, B, C or capital N for natural number. So there are some standard in mathematics we define, such as capital N को हम बोलेंगे set of natural number, capital Z को हम define करते हैं set of integer. I think already you have studied in your 10th class also. Capital Z is the representation for integer. It will include all the positive integer or all the negative integer including 0. When we says the z plus means then when we comes in the positive integer 1, 2, 3 and up to so on. Same as set of negative integer -1, -2, -3 and up to so on. Q, set of rational number. Rational number are those number which can be written in P by Q form and Q should not be equal to 0 are the rational number. Rational number which can be written P by Q form and Q should not be equal to 0. Capital R represent the set of real number, R plus set of positive real number, Q plus set of positive real rational number. So set is a well defined collection of object, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है. नेक्स्ट, the element of a set represented by small letter A, B, C, D. अभी कैपिटल ए सेट और A, B, C, D आर दी, हम कह सकते हैं A, B, C, D आर दी मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट A. ईच एंड एवरी सेट एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू इटसेल्फ सेट. फिर से सुनिए, हर एक सेट का एलिमेंट अपने आप सेट को बिलोंग करेगा. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट belongs to itself set. So A belongs to A, this sign represent to this sign belongs. इसको हम बोलते हैं belongs. E के तरीके से ये बनता है. A belongs to A, B belongs to A, C belongs to A, D belongs to A. क्योंकि यहाँ पे A, B, C, D चार ही एलिमेंट्स थे जो कि सेट को बिलोंग कर रहे हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. There are two methods to represent set. First, roster और tabular form. सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म. सो डिस्कस करते हैं अभी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे सीधे डायरेक्टली एज ए टेबल की फॉर्म में, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख करके, और सेपरेटिंग बाय कोमास, कोमा लगा कर सेपरेट करेंगे नंबर को. जैसे नेचुरल नंबर की मैं बात करता हूँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5. लेस देन 5 नेचुरल नंबर यानी 1 से 4 तक हो गए, तो इनको सबको हमको कोमा लगा करके लिखना है. 1, 2, 3, 4. तो ये आपका एक रोस्टर फॉर्म हो गया. अभी मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर
लेस देन और इक्वल टू 5, तो आपका यहाँ पे आ जाता 1 2 3 4 और 5 भी, क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू 5, तो यानी इक्वल टू 5 भी हो जाएगा। When we writing the set in roster form, an element is not generally repeated. अभी जैसे ये टीचर है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ई और ई 2 बार रिपीट हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि टी कोमा ई ए कोमा सी कोमा एच कोमा ई फिर से यहाँ पे लिख देना है, ई नहीं लिखना है, केवल 1 टाइम ही आपको काउंट करके लिखना है। नेक्स्ट दी सेट बिल्डर फॉर्म। Set is represented by a single common property. Here in set builder form, set को हम एक common property से represent करेंगे. That common property हो सकती है define the set itself, जो property set को define करेगी। जैसे हम बोलते हैं वोवल्स लिखिए आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, किस में, ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसी को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूँगा एक्स डबल डॉट इज, डबल डॉट को हम बोलते हैं सच दैट, तो ये हो गया एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो जैसे आपका ये हो गया नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये 1 2 3 4 रिप्रेजेंट कर रहे एक्स को, और एक्स एक प्रॉपर्टी हो गई किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, कि नेचुरल नंबर लेस देन किससे है, 5 से। एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो एक्स जो सेट के एलिमेंट है उसकी ही प्रॉपर्टी है कि ये एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 5 जाएगा, ठीक है। तो ये इसी का ही रिप्रेजेंटेशन है इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं आपको बोलता हूँ n 1 2 3 4 5 आप लिखिए इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप लिखते एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। नाउ हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी अपनी बुक्स ओपन करिए, क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ये शायद आपको दिख पा रहा होगा, कोई नहीं, आप अपनी बुक से ही देखिए, मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम। आपको पता है जनवरी जून एंड जुलाई, सो दीज आर दी 3, वी आर ऑलरेडी नो दैट these are the 3 months starting with the J, so it is a well defined collection of objects। so हम कह सकते हैं दिस इज़ ए सेट, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही ये बोलती है कि सेट हम उसको बोलेंगे जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। सो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, आप मेरे को बताइए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया तो डिफरेंट फील्ड में हो सकते हैं। कोई फील्ड हो गया आपका, हिस्ट्री का हो सकता है, साइंस का फील्ड हो सकता है। सो आपको रेफरेंस इज़ नॉट गिवन हियर, रेफरेंस इज़ नॉट डिफाइंड हियर, सो हम कह सकते हैं कि ये सेट नहीं है, बिकॉज रेफरेंस इज़ नॉट डिफाइंड। थर्ड पार्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 best cricketsmen of the world, so it is not a well defined collection of object because the criteria for determining a batsman talent may vary from person to person, so this is not a set। क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि जो बैट्समैन है क्रिकेट बैट्समैन, तो रेफरेंस नहीं पता है ना, वो कोई बॉलिंग में भी अच्छा हो सकता है, कोई बैट्समैन के लिए बैटिंग में अच्छा हो सकता है क्रिकेट में। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन विच फील्ड इज़ नॉट डिफाइंड, सो रेफरेंस इज ऑल्सो नॉट गिवन हियर, सो इट इज़ नॉट ए सेट। फोर्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन माई क्लास। तो मेरे को पता है जितने भी लड़के मेरी क्लास में हैं मैं सभी को जानता हूँ, नोन है मेरे, तो दैट वी कैन डिफाइन ऑल इन ए सेट, सो इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिफ्थ पार्ट सेम आप ऐसे ही कर लीजिएगा, सेम है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू अब 99 तक जाएंगे, तो इट इज़ ऑल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। सिक्स पार्ट, एक कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई,
ठीक है। नॉवेल्स, तो इट इज़ ऑल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी लिखा गया है कलेक्शन नॉवेल्स का, सो इट इज़ ऑल्सो ए वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ए सेट। सिक्स पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर is also the well defined collection of the set, so it is a set. Same here, question number first का 8th part, the collection of all questions in this chapter, the collection of all questions in this chapter, the collection of all, yes it is a set। जो भी चैप्टर हम रीड कर रहे हैं उसके क्वेश्चन मेरे सामने ही हैं, यानी उस वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट है, यानी दिस इज ए सेट। नेक्स्ट वन 9th, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी सिचुएशन वेरी कर सकती है, रेफरेंस नहीं गिवन है ना आपको। मोस्ट डेंजरस किसी के लिए लायन हो सकता है, किसी के लिए एलिफेंट हो सकता है, तो इट इज़ नॉट ए सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं लेट ए इज गिवन देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस सिंबल हमको बताना है कि ये बिलोंग्स करता है, ये डजेंट बिलोंग, ये सिंबल होता है बिलोंग्स का, ये होता है डज नॉट बिलोंग का। हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए बिलोंग्स टू इट सेल्फ सेट, यानी मैं बोलूँगा 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, तो 5 is given here, so it is the member of the set, so 5 belongs to A। 8 is not given in A, so 8 doesn't belongs to A। Same here, 0 doesn't belongs to A, 0 is not given here in A। 4, yes 4 is given here, so 4 belongs to A। 2 is given here, so 2 belongs to A। 10 is not given in set A, so 10 doesn't belongs to A। Next, third question, write the following set in the roster form, रोस्टर और या मैं बोलूँ टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में उनको लिखना, सेपरेटिंग बाय कॉमास। तो ये आपको गिवन है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, सो इट इज़ गिवन इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपको ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स एक प्रॉपर्टी है और एक्स क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है कि वो एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, यानी -3 से ग्रेटर देन इंटीजर और लेस देन 7 इंटीजर। -3 से ग्रेटर देन इंटीजर यानी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट लेस देन 7, सो अप टू 6 तक ही हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स इज ए प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी किसके लिए, सेट बी के लिए डिफाइन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर लेस देन 6 यू कैन राइट 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6, और इक्वल टू 6 जाता तो कॉमा करके हम इक्वल टू कॉमा 6 भी लिखते हैं। थर्ड पार्ट सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक्स एक प्रॉपर्टी है किसके लिए, सी के सेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर और जिन डिजिट का सम क्या 8 हो जाए, यानी आप को पता है 2 डिजिट हम लिख सकते हैं, यानी 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और सम 8 करना है तो यानी 1,7। अब आपको सम 8 करना है। एक काम करते हैं, अभी स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट एक इंक्रीज़ करते हैं और सेकंड 1 डिजिट एक डिक्रीज़ करते हैं। 17, 26, 35, 4, 8 हो गया ना सम। 5, 3, 53, 5 + 3 8 हो गया। 6, 2, फर्स्ट के एक इंक्रीज़ करेंगे सेकंड वाले को, यानी 6 से 7 और 2 से एक डिक्रीज़ यानी 7। नेक्स्ट वन फर्स्ट एक और इंक्रीज़ और सेकंड एक डिक्रीज़ 8। सो दीज आर दी 2 डिजिट नंबर हुज सम इज़ 8। अब आप उनको एक सेट में लिख दीजिए करली ब्रैकेट लगा के, इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, दिस वन ब्रैकेट इज करली ब्रैकेट। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट, fourth is given D x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर आर दोज नंबर डिविजिबल बाई 1 और itself एंड विच इज़ ए डिवाइजर ऑफ 60, यानी प्राइम नंबर आपको लिखना है जो 60 को डिवाइड कर दें, यानी आप 60 से एक प्राइम फैक्टर पहले निकाल लीजिए, इसको 2 से डिवाइड किया 30,
फिर अगेन 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, 3 5 जो 15, फिर 5 से 1. तो देन इट कम्स इन 60 फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सो आपको 2, 2, 3 एंड 5 दीज आर दी फैक्टर्स, और आपको सेट की फॉर्म में लिखने हैं, यानी सेट की जब फॉर्म में आप लिखेंगे देन यू विल नॉट रिपीट द लेटर. सो 2 टाइम्स आ रहा है तो आप एक ही बार इनको लिखेंगे 2, 3, 5. फिफ्थ पार्ट, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में भी जो वर्ड रिपीटेड होंगे आपको वो नहीं लिखना है, केवल वन टाइम यू लिखना है और सबको कॉमा लगा करके, यानी T, R, I, G, O, N. अभी N आ गया, फिर O 2 बार आ चुका है, यानी O एक बार आ गया था, आप फिर से नहीं लिखना है, यानी आप एक ही बार लिखेंगे. फिर N, M, E, Y. ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे फिर से जैसे O 2 बार आ गया, एक ही बार हमने लिखा है, ऐसे ही TB और TB तो 2 टाइम रिपीटेड है, ऑलरेडी आ चुका है, तो बस एक ही बार हमने लिखा है. बिटर नेक्स्ट. तो यहाँ पे T और E 2 टाइम्स आया है, तो हमको 1 टाइम ही लिखना है, B, E, T, R. सो इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी 3, 6, 9, 12. अभी आपको एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है X जो कि एक सेट A के मेंबर हैं और वो प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं किसके लिए, यहाँ से देख करके हमको पता लगेगा. 3, 6, 9, 12, यानी ये 3 का ही मल्टीपल गया है, यानी X इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड X इज़ लेस देन इक्वल टू 12. X एक प्रॉपर्टी है क्योंकि X एक मल्टीपल है 3 का एंड X लेस देन इक्वल टू 12. यानी आपको ऐसे लिख सकते हैं X सच दैट X इक्वल टू 3n. ये 3 टाइम्स ऑफ n बिलोंग्स करता है एक नेचुरल नंबर को, और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4. कैसे, देखिए n की वैल्यू 1 रखते हैं, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12. यानी n की वैल्यू आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 तक ही रखेंगे, देन यू विल गेट 3, 6, 9, 12. तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म. सेम ईयर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट 2, 4, 8, 16. तो अभी हमको यहाँ पे दिख रहा है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8. तो आप इसको 2 रेज़ टू द पावर n लिख सकते हैं. x एक प्रॉपर्टी है किसके, सेट B के लिए. डिफाइन कैसे हो रहा है, x इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5. देखिए 5 रखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 5 32, और n की वैल्यू 1 रखेंगे 2. तो वी विल गेट 2, 4, 8, 16, 32 बाई यूजिंग n, पुटिंग ईयर n की वैल्यू 1 से लेकर के और 5 तक. सेम ईयर 5, 25, 125, 625. सेम you can proceed. 2, 4, 6, these are the given even number, or so x such that x is an even natural number up to going to so on. तो हम बस इतना ही लिखेंगे, x such that x is an even natural number. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं. फिफ्थ पार्ट 1, 4, 9 अप टू 100. आपको दिख रहा है कि 1 की पावर 2 यानी 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी 4, 3 रेज़ टू द पावर 2 यानी 9. यानी आप नेचुरल नंबर की पावर एक एक डबल करते जाएं, देन यू विल गेट ऑल द अबव सेट. So we can write here x such that x equal to n square and n belongs to natural number and n is greater than equal to 1 and less than equal to 10. तो देखिए आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, you will get 1. n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 raised to the power 2 4, you will get 4. n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 raised to the power 2 यानी 9. सो अप टू 100 तक, यानी n की वैल्यू आपको 10 तक ही पुट करनी है. 10 raised to the power 2 यानी 100. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5, list all the element of the following set. A is given x such that x is an odd natural number. यानी odd natural number आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7. बेसिक है ये सब आपको. सेकंड क्वेश्चन, x such that x is an integer, x is greater than -1/2 and less than 9/2. तो आप -1/2 की वैल्यू देखिए आपने, -0.5, 9/2, आप 2 4 8,
1 यानी 0.5, 2 5 या 10, 4.5। अभी आपको इंटीजर वैल्यू लिखनी है 0.5 से बड़ी है एक्स की वैल्यू एंड 4.5 से लेस देन। देन वी कैन राइट इंटीजर ग्रेटर देन 0.5, इंटीजर कम्स ग्रेटर देन 0.5 इज सच दैट जी माइनस 0.5 के बाद आपका इंटीजर जाएगा 0 1 2, ऐसे ऐसे मूव करेंगे और अप टू लेस देन 4.5 यानी इंटीजर अप टू कहाँ तक जाएगा 4 तक वैल्यू की जाएंगी। तो हियर वी कैन राइट 0, 1, 2, 3, 4। सेम थर्ड पार्ट सी एक्स एज दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सेम एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करिए, आपको वो इंटीजर लिखने हैं जो कि वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 4, यानी आप 0 की पावर 2 यानी 0 भी लेस देन 4, 1 पावर 2 लेस देन 4, 2 पावर 2 यानी 4, 3 पावर 2 करते तो 9, तो 9 तो लेस देन नहीं है 4 से, तो हम यहीं तक ही जाएंगे केवल। और ऐसे ही मैं निगेटिव में भी अगर इसकी वैल्यू रखता हूँ -1 की पावर 2 वी विल गेट दी 1, -2 raised to the power 2 we will get the 4. So same here we are getting the value less than or equal to 4 by putting the value -2, -1, 0, 1, 2. We have to write the integer which are less than equal to 4 by squaring the integer value. So squaring the -2 we will get the 4, so we can write -1 power 2 we are getting 1, so less than 4 we can write up to 2. Same एक्स एज दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोए। तो सेम आपको लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको टेबुलर में लिखना है, तो आप कॉमा लगा करके लिखेंगे और जो वर्ड रिपीट हुआ है उसको नहीं लिखना है। सेम ईयर यू कैन डू योर सेल्फ ऑल दिस क्वेश्चन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन 6। मैच द फॉलोइंग 1 2 3 6 गिवन 1 2 3। अभी हम देखते हैं एक्स एज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2, 3 मैथमेटिक्स 1 3 5 7 9। और 1 2 3 6 हम देखते हैं क्या, एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है 1 2 3 6, दीज आर दी नेचुरल नंबर एंड दीज आर ऑल्सो दी डिवाइजर ऑफ 6। 6 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं ना, 1 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 3 भी 6 भी, तो इट विल मैच टू दी सी पार्ट। 2, 3 आर बोथ दी प्राइम नंबर, तो एक्स एज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2, 3 बोथ आर द डिवाइजर ऑफ 6, यानी 6 को डिवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स दिस द ऑब्वियस मैचिंग विद दी लेटर दिस। हमको लेफ्ट साइड में दिया है रोस्टर फॉर्म और राइट साइड में दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, तो वी कैन जॉइन टू accordingly। 1 3 5 7 9 belongs to B. X as that X is an odd natural number less than 10. Here 1 3 5 7 are 9 up, these are the odd number and less than 10. So next in our next lecture we will move to the further exercise 1.2 and further introductory part of the types of the set, and if you are getting any problem or facing any difficulties in video, you can comment directly on this app. Thank you.